थांब सरांनी मीटिंग सुरू केली. जो कनेक्टेड आहे तो नेते. अगं ते बरोबर आहे पण आईच्या आईला कनेक्टेड आहे. Hello. Hello. Good morning, sir. तो निकला. मलाही आहे. और थोड़ा वीडियो चाहिए. Hello students, good morning all. Good morning, sir. Swayam. Good morning, sir. तुम भी बैठ जाओ. काम करो अगर डिक्लेरेशन छुट्टी है तो. Swayam is present. Not yet. Siddhant. Siddhant. Just Swayam came. Swayam. Sir, I am present. Swayam. Yes, sir. Swayam again come up. एक मिनट हमारा. रास्ते में ऐसी वॉमिटिंग. Keep your mic on. नहीं चाहिए. है क्या? Harshitanshu, please switch off your mic. When you are down, Swayam, can you display your name up, Swayam? Swayam, raise your hand. Yes, sir. Swayam, I will make you co-host. हाँ, थोड़ा कुछ रहेगा तो please you है. Okay, sir. हाँ, please also this spotlight my VAS camera. हाँ, I am not able to do from my. Please mute everyone, Swayam. Please, sir, don't mute everyone. Yes, sir. Don't mute. Guys, can anybody else apart from Swayam can take screenshot of the class? So what did you say? Screenshots of the board today. Can anybody take? So the last thing we did was like what happens when we move the mirror by an angle theta, what happens to the reflected ray and all that. We did that. That we did. No, I Yes. was asking, can anybody take a screenshot? Yes, Sir, sir, yes. I'll take, Yes, sir. sir, yes, I'll sir. take. What's your name, student? Pooja, sir. Pooja. Can you display your name up? Yeah, can you raise your hand here? Yes, sir. पेट भरा हुआ है. भूख नहीं है. Sir, yes, sir. I've raised my hand. Thank you. You're from which batch? Sir, Dadar batch. Sadhu. Guys, please somebody please spotlight my video. This. Yes, sir. It is visible. Okay. Guys, ग्रुप का जो है, guess ग्रुप में can जो है कुछ लोगों का हुआ है. Can anybody create one more group? Like
Pooja, can you create the second group? एक और ग्रुप सर. ओके सर, अभी क्रिएट करूं? Second one, हाँ, क्योंकि जो इसमें शायद कुछ स्टूडेंट्स का नेम नहीं आ पा रहा है, so we can transfer those students there. Yes, sir. ठीक है. That is singing. So you can press mute all for once your mic is muted. After that, Swayam, please mute all. But then how will we? Lunch. Yeah, Vedant. Yes, Vedant. So when have you posted the group link? Yeah. Pooja is creating one group. उसमें जो है, I will send the link. Huh? So can you ask her to post in the like the 16th April batch group or the Physics Pro NEPJC 345 group? Okay. Huh. Okay. And so can you please keep us unmute so that we can ask her doubts at the like when you are teaching something, we can ask her doubts on the spot. Okay, हाँ. अभी you can ask me right now. Also. अभी मतलब जब while I am teaching, you can ask me. Huh? Okay, Please sir. ask. Okay, sir. ठीक है. So last class में हमने जो है वहाँ तक कर लिया था. ठीक है, आगे क्या करते हैं? So ठीक है guys, we will define some जो है object और image. First we'll define. किसी का microphone लग गया क्या? ठीक है. तो जो है okay. Okay, हाँ. So हाँ, please ask me on the group. हाँ, अभी you can use your mic and all ask. ठीक है, object. Please note down. It is defined as the point of intersection of incident rays. Guys, किसी का mic on है क्या? किसी का mic on हो रहा है क्या? Sound is coming. सर आई थिंक आपको कोई मैसेज भेज रहा है प्राइवेटली जूम पे, उसका टिंग टिंग आ रहा है. Okay, can we mute that वाला message का sound? ठीक है. Disable. Chat with host only I have done. ठीक है, हाँ. Okay guys. So guys, जैसे यहाँ Sir? अब हाँ. Yeah. So that is the sound of someone joining the meeting. Okay. Someone. There's an option with the host. You can disable that sound. Okay. Whenever someone joins or leaves the meeting, you can hear that sound. Okay. Yes, sir. Okay. ठीक है अभी ना. हाँ. So guys, देखो यहाँ पर जो है object. तो अभी जो है we will be dealing with the later on we will be dealing with the multiple events. Multiple events में जैसे जो है ऐसा possible है ना, जैसे मान लो you have a lens. हाँ. Lens से this is the object. और इसका image यहाँ बन गया से. So this is the object, ये उसका image बन गया. So now this image of this object जो है अब multiple events कैसे करा सकते हैं? Say somebody has placed a mirror over here.
किसी ने यहाँ मिरर प्लेस कर दिया, सो नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, है ना। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, तो किसी का इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए जो है लेट अस डिफाइन कि ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज को पहले डिफाइन कर लेते हैं, देन वी विल यूज दिस डेफिनेशन। हाँ, तो ठीक है, क्या डेफिनेशन है? ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज जो भी है, जो भी इवेंट होने वाला है, ठीक है, उसका इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैन बी रियल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैन बी रियल और वर्चुअल, ठीक है गाइस। अगर मान लो जो है इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना नहीं पड़ रहा है, सो इट इज रियल। किसी सिचुएशन में से इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट सोर्स है जहां से रेस बाहर आ रहा है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल डिस्कस, ये विल सी आल्सो कि अगर कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मिल नहीं रहा है, वी हैव टू एक्सटेंड and we are trying to find the point of intersection by extending the lines, तो virtual में categorize होगा। This I will explain अभी, we'll take examples। तो वैसे ही, तो first let us draw the left side definition। image के लिए it is defined as the point of intersection, as the point of intersection of reflected, और अभी तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट बाद में प्रिज्म वगैरह आ जाएगा, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। तो ठीक है, इमेज इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। तो इसमें भी यू कैन हैव रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो गाइस, अब जो है मेन अपना स्ट्रेस जो है स्फेरिकल मिरर्स में, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने 9-10 में जो ये पढ़ा हुआ है, ये जस्ट रिवीजन जैसा है। सो एक्चुअल जो है स्टार्टअप होगा, जैसे एचसी वर्मा में भी क्वेश्चंस जो है दे विल बी ऑन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंसेस एंड ऑल। लेकिन ये बेसिक्स है, तो थोड़ा अपन इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट में बी रियल और वर्चुअल। image is defined as the point of intersection of reflected or refracted rays. Image may be real or virtual, ठीक है। Vedant, you have a doubt, please tell. Please tell, please use your mic and say. Okay, Pooja, you have taken the screenshot, can I Yes, I have taken. okay, unmute, you are unmuted now. This means students, guys, Swam, please unmute so that they can all speak. Okay, so I will erase this one, guys. तो ठीक है, दिस ये डेफिनेशन से लेट अस डू, ठीक है। फर्स्ट जो है, वी विल ट्रेस द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वी आर ट्रेसिंग, ठीक है, प्लेन मिरर में वी आर ट्रेसिंग इमेज। तो ठीक है, यू हैव प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर और ये ऑब्जेक्ट है। सर आप एक बार रियल और वर्चुअल का डिफरेंस फिर से बता सकते हैं? करेक्ट, हाँ, एक मिनट, आई विल ये एग्जांपल लेते वक्त आई विल एक्सप्लेन। हाँ, सी, अब देखो, इमेज ट्रेसिंग के लिए एटलीस्ट यू नीड 2 रेस, दो रेस को एटलीस्ट चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगी, लाइट रेस सभी डायरेक्शंस में जाएंगी, सब डायरेक्शन में रेस बाहर जाएंगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रेस एवरी डायरेक्शन में। Sir, you are muted. ठीक है,
सो इमेज ट्रेस करने के लिए क्या होगा, इमेज ट्रेस करने के लिए हाउ विल आई डू ना, तो इसमें जो है जैसे एक रे ऐसे लीजिए फर्स्ट, ये हो गया। तो सर होस्ट जो को होस्ट है वो थोड़ा इरिटेट कर रहा है, सबको हाँ, सर। अनम्यूट कर रहा है। वो स्वयं हाँ सर, उसको हाँ, निकालो। सर। एक बच्चे ने बोला था मेरे को। स्वयं सर निकाल दो उसको। Vedant is a नो spammer. सर, तो स्पैमर नहीं है सर, बेचारे से मैनेज नहीं हो रहा है बस। यस सर। सर कोई मेरे को बार बार मैसेज कर रहा है वेदांत को निकालने को। सर आई एम नॉट अ स्पैमर। नो सर, वेदांत इज नॉट अ स्पैमर। आप इसको निकाल दो, स्वयं को। सर ही इज नॉट अ स्वयं को स्वयं भी co-host स्पैमर से नहीं निकाल है, दो। स्वयं स्पैमर नहीं है सर, वो उसको बस मैनेज नहीं हो रहा है बेचारे से। सर हाँ, को होस्ट सर। रहने दो सर। सर मैं सबको म्यूट कर Vedant OP, Vedant OP, Vedant OP. नहीं सर, म्यूट मत करो। अरे भाई म्यूट मत कर यार, डाउट Vedant पूछने के लिए OP. रुक जाए। Vedant OP. स्वयं ने सर को शायद से म्यूट कर दिया है। किसने किसने Vedant OP. तो वो BA 150 मरी पे की स्पैमर है। हाँ गाइस प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। सर कैन यू मेक मी द को होस्ट? मेरे पास डुअल स्क्रीन है तो मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ सर, उसको कर लो। किसको किसको हो सर युग करके कोई था। युग, 448 वायु जी, उसको कर लो। यस सर। यू इज फ्रॉम व्हिच बैच? सर आई एम फ्रॉम NAPJC 5। अंधेरी। सर उसको बोल दो कि कोई भी बच्चा स्पैमिंग करे उसको निकाल दे रहा है। हाँ हाँ निकाल दो। यू हाँ थैंक्स युग। हाँ नो प्रॉब्लम। बारिश म्यूट हाँ युग हाँ बाकी हाँ एवरीबॉडी इज म्यूटेड नाउ। ठीक है युग। तो गाइस देखो हाँ, तो इसमें जो है if this is the ये इंसिडेंट रे हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। ठीक है, तो यू नीड टू रेस। हाँ एक रे ऐसा हो गया, दूसरा रे इधर ले लेते हैं, से ये वाला एंगल थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, तो गाइस अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रेस आते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस ऑब्जेक्ट। अभी जो है यहाँ पे जो रेस आपको जो है एक्सटेंड कराना नहीं पड़ रहा है, द इंटरसेक्शन पॉइंट यू ऑलरेडी गॉट ना, तो इसको जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे ही मिल जाए, यू डोंट हैव टू डू एनी कंस्ट्रक्शन, यू कॉल दिस एज रियल। इंसिडेंट रेस है, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्जेक्ट, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया रियल। नाउ दिस आर रिफ्लेक्टेड रेस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड रे। सर तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट में से डाइवर्ज होता है रेज वो रियल ऑब्जेक्ट है और कन्वर्ज होता है वो वर्चुअल। नो नो नो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ अब देखो, सो दिस आर रिफ्लेक्टेड रेस। अब रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू वांट टू फाइंड, राइट? तो रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है स्केल रख के इसका इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ रहा है। ये ऐसा, तो यहाँ पे स्केल रखा और उसको एक्सटेंड किया ऐसा। सो जो है यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस, इसका इंटरसेक्शन विल बी कॉल्ड एज इमेज। तो अब इसका जो है यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय कंस्ट्रक्शन ना, ऑन जो ऑन इट्स ओन नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला। सो इसको जो है वर्चुअल में कैटेगराइज। तो दिस इज द डेफिनेशन। सो जब भी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन इट्स ओन मिल रहा है तो रियल में होगा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सम डूइंग सम कंस्ट्रक्शंस, सो वो वर्चुअल में जाएगा। सर हाँ सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Yes. यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट का, तो यहीं से रेस बाहर निकल रही है। हाँ सर, हाँ। प्लीज म्यूट योर माइंड। यहाँ से ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे मिल रहा है,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये वाला अगर मिल रहा है तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तो है इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल। यहाँ पर दिस आर द रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू ऑब्टेन बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन। इसको बाकी एक्सटेंड किया, फिर इसको एक्सटेंड किया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन से मिल रहा है दिस इज रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये इमेज कैसा इमेज जाएगा, इट विल बी वर्चुअल Okay. बिकॉज़ इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डूइंग सम कंस्ट्रक्शन। Okay, sir. Thank you, sir. सर लेकिन रियल ऑब्जेक्ट में सर इस केस में सर वो उसके मतलब वो सोर्स है ना लाइट का, इस केस में ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना है कि रियल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंस्टेंट रेस, क्योंकि हम आगे जो है कैसे डील करेंगे मल्टीपल इवेंट्स। तो मल्टीपल इवेंट्स यहाँ से तो सब जा रहे हैं, रेस जा रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। नहीं, यहीं से निकल रहे हैं ना, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके यस सर लाइक दैट। हां सर ऑब्जेक्ट कभी वर्चुअल कैसे हो सकता है? सर वो बस रिफ्रैक्टेड के केस में होगा ना। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी एक्सप्लेन, आई विल गेट दैट पॉइंट। ये सबको समझ में आया ना? यस सर, लेकिन रब यस सर समझा। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें तो अब इसमें जो है यू विल सी, ये तो फर्स्ट वे, रियल ऑब्जेक्ट इसका वर्चुअल इमेज, या फिर उसको ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये मिरर है, इतना करने की जरूरत नहीं है। से दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट व्हाट यू डू, यू ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लो नॉर्मल। जितना ये डिस्टेंस आगे होगा ऑब्जेक्ट इमेज, उतना ही डिस्टेंस पीछे, डी डिस्टेंस पीछे। तो ये तो रे डायग्राम से ऐसा शो करने का वे है कंस्ट्रक्शन, लेकिन बेस्ट क्या हो जाएगा, मिरर है, ऑब्जेक्ट है, यू ड्रॉ नॉर्मल, इस नॉर्मल लाइन में जितना डिस्टेंस आ गया, डी डिस्टेंस आ गया, तो डी डिस्टेंस पीछे विल बी द इमेज। अंडरस्टूड? यस सर। राइट सर। सर ये प्लेन रियल लाइफ है ना? सर इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया है। सर लेकिन नहीं सर, इससे एक मिनट रुको। सर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल मतलब सर वो किसी ने पूछा सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे होता है सर, वो उसका आंसर आपने बोला वो समझा नहीं सर। नहीं, हाँ नहीं, हम देखो अभी से जो है मल्टीपल इवेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं अभी, तो जब भी हम रियल वर्चुअल बोलेंगे, तो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल, अगर इंटरसेक्शन नहीं है वी हैव टू एक्सटेंड एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन वो वर्चुअल में कैटेगराइज हो जाएगा। तो जैसे पेंसिल इन अ ग्लास। पर सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होएगा ही क्यों, कैसे मतलब? कन्वर्जिंग रेस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना सर? एक मिनट, आई विल कम टू दैट पॉइंट। ये पहले समझिए, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर, ये समझ आ गया। समझ गया। गाइस अब देखो इसमें जो है एक वन मोर थिंग, आई विल कम टू दैट वर्चुअल ऑब्जेक्ट पार्ट। तो कैन आई विल रेज दिस वन। देखो जैसे अगर कि मान लो से यू हैव ये वाला केस भी है, जैसे अगर कि मान लो ये मिरर ऐसा है, से यू हैव दिस एज योर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है ऐसा, इस केस में इससे रियल ऑब्जेक्ट है ना। तो अगेन रेस कैसे करोगे, रेस भेजोगे तो रे तो चाहिए ही आपको, ये रे ये नॉर्मल हो गया और रे ऐसा चला जाएगा इधर। सिमिलरली ये ऐसा रे फिर इधर चला जाएगा। सो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रेस है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू ट्राई टू लोकेट। So this rays they will appear to be coming from this point. ये रिफ्लेक्टेड रेस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इमेज ये कहलाएगा। अब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, वी हैव टू एक्सटेंड एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्ट जो है इंटरसेक्शन, तो ये वर्चुअल में कैटेगराइज हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट था, ये होता। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है, यू कैन डू इन दिस वे आल्सो, इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये मिरर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट आई विल सजेस्ट कि ओके ड्रॉ एन एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर लो, ये वाला, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर। इफ दिस इज ये डी डिस्टेंस आ गया तो डी डिस्टेंस पीछे हो जाएगा इमेज, राइट? वही आ रहा है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा यू विल डू। ये अंडरस्टूड? ऐसा भी आएगा तो ऐसा यू कैन। सर हाँ सर वो जो आपने बोला ना सेकंड पॉइंट, वो जो डी डिस्टेंस का, वो दोनों के लिए वैलिड है, रियल और वर्चुअल इमेज? वर्चुअल का देखो, हाँ ये जो है अभी कौन सा है हमारा, ये जो वर्चुअल इमेज बन रहा है अभी जो है रियल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का विल डू। अभी ये वाला केस ये समझ में आया ना? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों के लिए वो डी वाला पॉइंट सेम है, मतलब वैलिड, हाँ वैलिड रहेगा. लेट मी शो इट टू आल्सो. अभी आई विल शो इट. ओके सर. हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? अब जो है ठीक है, तो ये तो हो गया रियल ऑब्जेक्ट था. वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी करना है. दिस वन सर 1 मिनट सर. ओके. हाँ इसको Sir, what is this D point? ये डी डिस्टेंस जितना Equal distance from the mirror, yeah sir. यस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. ठीक है. अच्छा ये वाला हो गया सबका. यस सर. अब देखो गाइस जो है जैसे ओके हाँ दैट एग्जांपल वाज दैट कि व्हेन यू हैव मल्टीपल इवेंट्स, जैसे say you have a lens, ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई और ये रियल ऑब्जेक्ट. अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं बन रहा है. दिस आर द रिफ्रैक्टेड रेज. ये इंसिडेंट रेज है तो ऑब्जेक्ट, और ये वाला जो है रिफ्रैक्टेड रेज. रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज इमेज. ठीक है इमेज. और ये जो है इमेज कैसा इमेज होगा? यहाँ पर एक्चुअल पॉइंट ऑफ रियल इमेज. रियल इमेज. अब if somebody says okay I am going to place a mirror in between, यहाँ पे कहीं, तो ठीक है. if somebody is placing a mirror over here, यहाँ पर तो कोई यहाँ पे मिरर प्लेस कर रहा है तो रेस कैसे आएंगी उसके लिए? ऐसे आएंगी. so now we are talking in terms of this plane mirror. तो रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया. so for this plane mirror, these are the incident rays. Yes sir. ठीक है भाई. These are the incident rays वाला. And we have just discussed कि जो है ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, it is the point of intersection of incident rays. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा. ऐसा थोड़ी ना कि ये उसको ब्रेक करके जाएगा. हाँ तो इस केस में वो ब्रेक करके तो जाएगा नहीं. तो अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो. So sir, will the intersection of these lines form a virtual object? हाँ this will be the object. और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? हमें एक्सटेंड करके बोलना पड़ रहा है. Virtual object. Virtual. So it will be virtual object. अब देखो यहाँ पर ठीक है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला. अब जो है इसका अगर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर नॉर्मल है ये ऐसा, ये वाला भी रिफ्लेक्ट होगा. दिस आर द रिफ्लेक्टेड रेज. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रेज क्या कहलाएगा? इमेज. एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, यू डोंट हैव टू डू एनी कंस्ट्रक्शन. सो ये कैसा इमेज हो जाएगा? रियल इमेज. अंडरस्टूड ये वाला? Yes sir. ओके सर वो इंसिडेंट रेज सर मिल नहीं रही है इसलिए हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दिया ना सर उसको. करेक्ट. हाँ क्योंकि जब भी वही है. हाँ देखो डेफिनेशन इज दैट थिंग कि इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर एनी इवेंट विल बी क्लासिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का इमेज. अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है फॉर दैट इवेंट, सो एक्चुअल इंटरसेक्शन है सो यू कैन से रियल. अगर एक्चुअल नहीं है यू हैव टू मेक एन कंस्ट्रक्शन फाइंड द इंटरसेक्शन, तो वर्चुअल हो जाएगा. ओके सर थैंक यू सर. तो ये केस में सेम पॉइंट बिकेम द इमेज पहले एंड देन वो बिकेम द ऑब्जेक्ट नीचे. Yes, this image of this event is going to act as an object for the second event. Understood. Yes sir. सर वो दोनों डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा ना फॉर द फर्स्ट केस. Okay, अब ये डिस्टेंस. हाँ ये डिस्टेंस. not this. The upper one. ये वाला. हाँ ये डिस्टेंस what you're saying? O and the mirror and between I1 and the mirror. वो तो मिरर फॉर्म, वो तो लेंस फॉर्मूले से आएगा ना. अच्छा ओके सर. हाँ सर ऐसे कभी हो सकता है क्या वो जो ऊपर वाले सिचुएशन मतलब सॉरी वो मिरर वाले सिचुएशन में वो डायरेक्टली रेस ओ से मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट से वो
मिरर को टच करे, मतलब रिफ्लेक्ट करे, ऐसे कभी होगा क्या? रियल ऑब्जेक्ट से प्लीज टेल अगेन, रियल ऑब्जेक्ट से कहाँ? नहीं मतलब बीच में वो कॉनकेव मिरर, सॉरी वो मिरर है। हाँ नहीं, जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, उसमें हाँ वो बीच में जो लेंस है ना वो है, पर हाँ। ऐसे कभी होगा क्या कि वो जो ओ से निकलने वाले रेस है वो डायरेक्ट वो मिरर को स्ट्राइक करेंगे? तो मिरर को स्ट्राइक करेंगे, यस दे आर स्ट्राइकिंग द मिरर बिकॉज़ द मिरर इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो बीच में किधर स्ट्राइक करेंगे वो पूछ रहा है। ओके, यू आर ट्राइंग कि कहीं बीच में, यू आर सेइंग नहीं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे? इट इज लाइंग दैट साइड और दिस साइड? नहीं सर, मेरा वो पॉइंट है ही नहीं। मेरा ये मेरे को ये पूछना है कि ओ से डायरेक्टली जो लेंस से रिफ्रैक्ट ना होके डायरेक्टली वो मिरर पे टच कर। यू आर सेइंग कि ऐसे ये बड़ा सा मिरर ले लिया ऐसा? हाँ। नहीं, हाँ वो तो हो, फिर बड़ा सा उसको बड़ा सा ले लिया, ये छोटू सा ले लिया, तो हो सकता है ना ऐसा, लेकिन हम वाला केस नहीं। अच्छा ओके सर, सर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला पार्ट एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो, पहले देखो ऑब्जेक्ट और इमेज, वो क्लैरिटी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। हाँ, इमेज इज डिफाइंड एज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, अगर एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो रियल होगा, अगर एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू हाँ सर। इन द फर्स्ट इमेज जो मतलब लेंस है, तो उसमें जो रिफ्रैक्टेड रेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए ना, मतलब? नहीं, ये वाला तो लेंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें अच्छा। डिस्कशन मत करो अभी। जो हाँ। है ये वाला देखना है, क्योंकि ये कैसे आया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, दैट वाज एन एग्जांपल। अच्छा ओके सर। लेंस का अपन करेंगे ना, लेंस का अभी तो पहले रिफ्लेक्शन हाँ। ही रिफ्लेक्शन ही हुआ है अभी। ठीक है सर, थैंक यू। So but will the real image be formed because there's a mirror in the middle, so the हाँ, फिर rays यहाँ won't से जो है, actually intersect? फिर हाँ नेक्स्ट, तो मतलब इस वाले इवेंट का वी आर टॉकिंग, इस वाले इवेंट के लिए दिस द वर्चुअल ऑब्जेक्ट और करस्पॉन्डिंग रियल इमेज हो गया। Oh, so that real image will only be formed if the mirror is not there, right? रियल इमेज विल नॉट बी, वो वहां का आपने, तो यू आर टेकिंग ओनली लेंस क्या? No, sir, because the rays will get reflected by the mirror before they can intersect to form a real image. That's what I was asking. यस 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 यस, हाँ लेंस से जो है पहले ही रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, मतलब मिरर से पहले भी हो जा रहा है ना। करेक्ट। Yes. सर अगर मिरर नहीं रहता तो जो वो लेंस से जो आ रहा है ना वो रियल इमेज, वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है ना, किधर फॉर्म होता है मतलब? वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यू कैन टेक इट ऑन स्क्रीन। वो सब तो, वो तो बात का इश्यूज है, लेकिन अभी हमें ये देखना है ना रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज ये क्या है। Sir, do virtual objects or images So really? please wait. ओके ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या क्या? Do virtual objects or images form, like can we see it? वो तो जो है, एक मिनट जाओ, हाँ मतलब जो है वो तो देखो गाइस, हम तो जैसे आप पहले 9-10 में सिर्फ सिंगल इवेंट्स लिखते थे, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स आ गया, तो जो है यू हैव टू स्पेसिफाई विच इज द इवेंट। हाँ, उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा रे, कौन सा इमेज है, हाँ उस इवेंट के लिए विच इज द इंसिडेंट रे, विच इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड उससे यू विल डिसाइड। Okay, sir. जैसे ठीक है, लेट मी सी, आई विल टेल यू वन। ठीक है, जैसे ही सेइंग गाइस, देखो क्या पूछ रहा है, जैसे से यू हैव अ मिरर, ही इज सेइंग दिस इज अ मिरर, नाउ ही इज प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट ही इज प्लेसिंग। गाइस उसका क्वेश्चन एक बार मैं आंसर करता हूँ। तो ही इज सेइंग कि पहले बताओ कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? दिस इज इट, एग्जैक्टली डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। तो ये इमेज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अब जो है ऑल द रेज दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड, वर्चुअल इमेज जो भी रेस है। तो ही सेइंग कि ये ऐसा है, रेस यहाँ से आता है। अब यहाँ पे ये रे ऐसा है,
ये ऐसा आ रहा है. So these are the reflected rays. ठीक है. So that means all the reflected rays will be present in this region. ना, ये हमने एक्सट्रीम बना लिया, ये सब डॉटेड है. ठीक है गाइस. So all the rays they will appear to be coming from this point. ऐसा. तो ये रिफ्लेक्टेड रेस जो है इस रीजन में प्रेजेंट होंगी, पूरा रिफ्लेक्टेड रेस का. ये तो वर्चुअल है. तो इफ आई इज हियर, तो आईज में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेस जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेस जाएगा तो ये इमेज देख पाएगा. अगर आई यहाँ पे है तब भी देख सकता है, लेकिन आई यहाँ चला गया, तो विल द रिफ्लेक्टेड रेस विल एंटर दिस पर्सन? नो सर. दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग कि कहाँ देख सकता है. तो उसके लिए गाइस आई विल से कि यू ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू. ये रीजन है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज. So you draw a region. So you can draw field of view of image. So it is the region where reflected rays are present. और उससे फिर जज कर लो भाई कि कौन सा कहाँ पे दिखेगा. Is this answers your question? ये understood ना? अच्छा. है ना. तो आप आई को रिफ्लेक्टेड रेस इस रीजन में प्रेजेंट होंगी. नाउ you place your eye accordingly such that if the reflected rays are entering in your eyes, then you will be able to see this image. सर वो किसी का डाउट था क्या ये? Was it someone's doubt? हाँ, yeah. Oh. So somebody's doubt. You So are you will teach this later? नहीं मतलब पढ़ा दिया अभी तो हो गया. जस्ट हाँ, ये तो मतलब यही था कि फील्ड मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ इस रीजन में you have reflected rays present. So in this region, if your eye is present, you will be able to see this image like that. सर ये रीजन का कोई रेंज निकाल सकते हैं क्या? कोई डेफिनेट वैल्यू होता है या एक अंदाजा से एक वेरी डिफरेंट वैल्यू होता है? हाँ, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा ना. हाँ, ये बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा. So we can define it with terms of angles, right? हाँ, एंगल्स पे इस पे डिपेंड करता है. Length of mirror, distance from mirror. सर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ये वाला डी है, ये भी डी हो जाएगा. सर ये फील्ड व्यू एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना प्लीज. नहीं फील्ड ऑफ व्यू क्या है ना. एक्चुअली ही वाज आस्किंग कि कहाँ ये इमेज पर्सन कैन सी. वन स्टूडेंट वाज आस्किंग कहाँ देख सकता है. तो भाई ठीक है, तो पर्सन कैन सी द इमेज. इमेज का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस उसकी आंखों में जानी चाहिए. ओके, तो रिफ्लेक्टेड रेस एच देख लेते हैं. इफ द मिरर इज ऑफ दिस फाइनाइट साइज, तो ये रे गया, ये ऐसे चला गया, ये रे आया, इधर चला गया. तो दिस ऑल रेज दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से. तो यहाँ से ऐसा होता जाएगा. सो इस पूरे रीजन में यू हैव रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट. इफ आई ऑफ अ पर्सन इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ दिस रीजन, तो देन दिस पर्सन कैन सी दिस इमेज. तो इसको हम जो है इस एरिया को, इस रीजन को वी आर कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड मतलब एरिया, लाइक दैट. ओके सर, थैंक यू. तो ठीक है गाइस, ये तो ठीक है पॉइंट इमेज का. दिस इज हाउ यू ट्रेस अ इमेज. ना पॉइंट ऑब्जेक्ट का यू ट्रेस अ इमेज. दिस इज हाउ यू ट्रेस अ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर लेट्स से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सपोज यू वांट टू ट्रेस इमेज ऑफ extended object in plane mirror. पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात इसको भी कर सकते हो. हाउ यू ट्रेस, इसको ट्रेस करने के लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का. सो गाइस ये ऐसा है, से यू हैव ये ऐसा ऑब्जेक्ट है ए बी. तो हाउ विल यू डू ए का इमेज. ए का इमेज विल बी ए डैश एंड बी का क्या हो जाएगा, बी डैश. ये उसका इमेज रहेगा. तो ए का ए डैश कर दो, मेरा
और ये D2 ऐसा इमेज आ जाएगा. So this is how you can trace image of extended object in plane mirror. So do we have to note all this also, these small diagrams which I am making? हाँ, ये कर लो. It's okay, you can go down. सर इसमें फील्ड ऑफ व्यू क्या रहेगा? इसमें फील्ड ऑफ व्यू, ओके. अब देखो यार, फील्ड ऑफ व्यू तो ठीक है, एक हम किसी इमेज का देखते हैं, हाँ, किसी पॉइंट का. सो अब जो है विच पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट, है ना, पॉइंट ए या पॉइंट बी? नो सर, मतलब होल ऑब्जेक्ट का सर, ऐसा कुछ. ओह, फिर वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. उसके लिए तो पूरे ऑब्जेक्ट ए एंड बी का फिर कॉमन इंटरसेक्शन रीजन बनाना पड़ेगा ना. वो थोड़ा ये हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. So shouldn't A dash B dash be dotted? इसको ये वाला जो है, यू वांट टू इमेज को कैसा भी यू कैन ड्रॉ, ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा, जैसे इससे कन्वेंशन ऐसा तो ये नहीं है कुछ. यू कैन ड्रॉ दिस वे आल्सो. Sir, can you explain this thing again? ये वाला, हाँ देखो, वी हैव दिस इज अ प्लेन मिरर. इसका इमेज हमें ड्रॉ करना था. सो हमने इसके एंड्स, ए को पकड़ा, ए का ए डैश बनाया, हाँ सर, ओके. बी का बी डैश बना दिया एंड वी जॉइन. ओके सर. सर वो कोई फील्ड ऑफ व्यू पूछ रहा था, इसका वो क्या होएगा सर? किसका फील्ड ऑफ व्यू जो पूछ रहा था सर. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने इसमें नहीं आएगा. अच्छा, तो आपने सिर्फ वो बेसिक आइडिया दिया कि वो क्या होता है इससे. एक पॉइंट के लिए ठीक है, हाँ, एक रीजन का बनाना कॉम्प्लिकेटेड है. थैंक यू सर. So can you show rays for this image? इमेज का वही, अगर कि जैसे है, जैसे हम एक पॉइंट का, वो पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं, ए का या बी हाँ, का. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का ऐसे. हाँ, जैसे पॉइंट ए का बना सकते हो, कैसा है, ये मिरर है मान लो. तो ये रह गया यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा. तो दिस विल ऑल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. वैसे यहाँ पे कर लो, ये ऐसा आ जाएगा, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा हो जाएगा ना, जैसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाते थे. यस सर. तो लेकिन इसमें क्या डायग्राम में काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो ऑलवेज आई विल से कि हमेशा ड्रॉ लाइन नॉर्मल, जितना डिस्टेंस आगे उतना डिस्टेंस पीछे. सर बी डैश के लिए भी बना सकते हो ऐसा. This is how we do it for plane mirrors, right? बी डैश, हाँ, प्लेन मिरर के लिए, करेक्ट. सो फॉर बी डैश, हाँ, बी डैश के लिए भी यही हो जाएगा. जैसे इफ यू हैव बी, तो बी का इमेज कैसे बनेगा, ये ऐसे गया, फिर इधर चला जाएगा ये वाला, राइट, फिर ये वाला छोटा एंगल, ये ऐसा ले लो. सर प्लेन मिरर पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लाइन पे, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे, लाइक मतलब कभी आगे ऊपर नीचे नहीं हो सकता. सेम, हाँ, नहीं, जैसे ये मिरर लाइन है, ये उसका परपेंडिकुलर इसी लाइन में दे विल लाई. ओके. सर वो टॉप डायग्राम अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा समझाओ ना. तो टॉप डायग्राम ये वाला जो है, जैसे यू वांट टू फाइंड द पॉइंट, ये इसका इमेज ना, ए का इमेज यू वांट टू फाइंड, राइट. पॉइंट ए का, हाँ, पॉइंट ए का इमेज यू कैन फाइंड दिस वे. सर उसको माइक ऑन रह गया, किसी का माइक भी स्विच कर, किसका माइक ऑन है? एक मिनट, हाँ, उसी का है. एक मिनट, हाँ, देखो guys, ये को-होस्ट का माइक ऑन है. ओके, ठीक है. Sir, हाँ, in spherical mirror also it will be the same. नहीं, spherical mirror we have not studied. We will start now. अभी नहीं, पहले plane mirrors. Okay. तो ये ऐसा हो गया. फिर अब जो ये इसका नॉर्मल ये हो गया, तो it will appear to be coming from this point. तो ये वाला ए का ए डैश ऐसा आ जाएगा. वही जैसे गाइस हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करते थे, ए का ए डैश. लेकिन ऐसे रे डायग्राम से मत करो, ये काफी लेंथी होता है. ऑलवेज ड्रॉ नॉर्मल, जितना डिस्टेंस आगे उतना डिस्टेंस पीछे कर लो. ये अंडरस्टूड ना? So you don't need to take two rays for this point. हाँ, नहीं, हाँ, सिर्फ क्या करो, ऑलवेज ए का ए डैश, बी का बी डैश करो और आ जाएगा आंसर. सर जो मैंने आपको जब पूछा था तभी आपने वो डायग्राम बनाया था, वो बी डैश के लिए था ना सर? करेक्ट, हाँ, बी डैश के लिए था. हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो अप्रोच इज सेम ना.
अच्छा तो सर मतलब कि वो रिफ्लेक्ट होके ए डैश में जाएगा और किधर कोई कोई बी डैश पे जाएगा वैसे, मतलब हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे पीछे। अरे ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज है। सर मेरा एक रेलेवेंट डाउट है। सर हमें सिलेबस में रिफ्लेक्शन इन 3D रहेगा क्या? ऐसा रखा हुआ है, इसका इमेज कैसा आएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। तो सबसे लेफ्ट में सर 3 आएगा सर, और सबसे राइट में 9 आएगा, उल्टा हो जाएगा ना पूरा। क्या इमेजेस आएंगे प्लीज टेल। सर आपकी आवाज बहुत लो आ So रही your है। voice is very low. कैन यू एडजस्ट योर माइक? यहाँ पर गाइस। यस सर, नाउ इट्स क्लियर। 3 Now it's proper sir. Hello. सर 9 आएगा वहाँ पे, उल्टा 9। I'm not able to hear students. Hello sir. हेलो सर। हेलो सर। Oh no. कुछ इशू हो रहा है क्या? आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है लगता है। हाँ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। हाँ सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। He can't hear us, guys. Message someone, just write a message to him. Yes, he can't hear. Yug, something is wrong क्या कुछ? Sir, we can hear you. सर अभी आ रही है, थोड़ी बराबर आ रही है अभी। सर अभी थोड़ी आवाज आ रही है, हाँ, you sir, can आई। continue. I think sir is not able to hear us. I cannot hear your volume. Yes. नहीं सर अभी आ रही है, अभी आ रही आपकी है। आवाज पहले बहुत लो आ रही है। Voice is low because सर को हमारी आवाज नहीं आ रही लगता। no, I cannot hear. Class cancel. Volume is low. सर जब बहुत आवाज आ रही है। Speaker volume is in full. सर आ रही है। Sir, now your volume is okay. Yes sir, it's fine. Sir cannot hear us. Yeah, sir cannot hear us. Students, can somebody increase the volume? Pooja or Yug? Sir, there is no way of increasing the volume, I guess. Or if it is, I don't know how to increase the volume. Sir, you would have to do it from your end. Co-host can't do anything, right? Message it to him. He can't hear us. Message करो, कुछ बोलना है। You can hear me ना? ठीक है। देखो ये जो है इसमें I cannot hear you. Okay. So this is 3. ये 3 हो जाएगा, ठीक है? और this will be 6. This will be 9. So the 3 will be laterally inverted now. Okay. अब जो है now see, फिर अगर कि suppose this is a clock, हाँ? से क्लॉक में यहाँ पे मान लो ये 2 o'clock हुआ, तो उसका इमेज से दिस अ मिरर, हाँ? इसका इमेज में ये 3 उल्टा नहीं होगा laterally? 3 उल्टा नहीं होगा। 3 6 9 7 सर टाइप करके भेजो। वाला जो आ जाएगा ना 10 ऐसा आ जाएगा। मान लो अगर कि सपोज Sir can't hear us only. लेकिन वो सही है तो ऐसा क्या? दिखाई उल्टा नहीं होना चाहिए सिर्फ। सपोज So I can't hear your message. Guys, type it. Sir, we can't hear you. Sir आपकी तो 5 में जो है Sir, actually guys I cannot hear you. Sir cannot hear us, guys. So you all message him, 5 please. ये 7. ठीक है गाइस। अब जो है यहाँ पर ये नंबर्स वी हैव चेंज्ड, हाँ? ये वाला नंबर्स मैंने हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो ये क्लॉक में डायल्स के नंबर्स वी हैव, हाँ? तो ये जो है 5 है तो 7 हो जाएगा। सो व्हाट इज द पैटर्न यू सीइंग? तो कुछ गाइस वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, लेट मी चेक अगेन व्हाट इज दैट। Sir, can you? एक मिनट। Sir, can you hear us? No. He can't. Okay guys, what I will do is I will leave and join again. Okay. Okay.
Join. How do I do join audio? Hello, sir. Hello, sir. You can't hear us? Yes, yes. No, we can hear. Sir, so shouldn't 3 be inverted? अब जो है नहीं जो हाँ ये तो मतलब बस जस्ट पॉइंट मार्क करने के लिए ये भी ऐसा हो जाएगा करेक्ट। ओके सर, सब उल्टा हो जाएगा ना? हाँ तो ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। और गाइस पैटर्न क्या हो जाएगा 2 + 10 यहाँ पे विल बी हाउ मच 12 5 + 12 7 देगा हमेशा समेशन 12 रहेगा। से इफ द टाइम इज समवेयर इन बिटवीन मान लो 5:20 है तो इसके इमेज में क्या हो रहा होगा? 740 लगता 640 तो 740 होगा सर। 740 होगा 640 ये and ये मान होगा ना। अगर मान लो जो है 5:20 25 है तो 639 75 640 and 639 639 75 639 यहाँ पे 35 and 35 seconds. 35. Okay, guys. Please copy this also. सर मतलब जितना इंक्रीज करना है उतना घटाना है ना राइट साइड में? हाँ सम 12 होना चाहिए। जैसे दिस एंड दिस 1 हो जाएगा, फिर ये 1 इसको मिलेगा यहाँ, ये 60 फिर 1 हो जाएगा ना 12 ऐसा। सर आप एक बार लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हो सर? दोनों का सम इज 12। हाँ Yes, sir. सम 12 है तो ये प्लस ये 12 यहाँ पे ये 12 हो गया। 520 है तो क्या हो जाएगा 640 हो जाएगा, तभी तो सम 12 आएगा। अच्छा एंड यहाँ पे भी ऐसा है, अगर मान लो ये ऐसा है तो which should be the other number so that the sum 12 है। तो ये सेकंड्स वाला हो गया, तो मिनट्स 60 होने के बाद एक इसको मिलेगा, फिर 60 1 आवर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा होगा। सर हाँ सर आप ये वापस समझा सकते हो? मुझे किसी ने ग्रुप के बाहर मीटिंग के बाहर निकाल दिया था, मैं नहीं देख पाया कुछ भी सर पिछले 10-20 मिनट से। ओके सी इसमें जो है व्हाट इज देयर, जैसे ये मिरर है ऐसा। हाँ ये मिरर और ये क्लॉक। हाँ हमने क्या किया, क्लॉक के पूरे मार्किंग्स हटा दिए। से ये ऐसा है 2 है तो उसका इमेज ऐसा बनेगा 10 राइट। यस सर 2 का 10 हो जाएगा। अगर 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अंडरस्टूड ना ये वाला? यस सर। So pattern is what 10 + 2 12 5 + 7 12 pattern is ऐसा आ रहा है ना सर। तो सर 1245 का सर कैसे होगा? क्या 1245 नहीं 1245 नहीं लेंगे, 0 ऐसा 11 हाँ 0 ऐसा। सर कैन यू रिपीट? 1245 नहीं लेंगे, 045 ले लेंगे ऐसा। अच्छा फिर क्या होगा सर? फिर you have 045। तो अगर मान लो ऐसा है आपके पास 045 तो क्या हो जाएगा सम होने के लिए फिर क्या हो जाएगा 015 ऐसा हो जाएगा नहीं? अच्छा सर मैक्स टू मैक्स 12 हो सकता है। हाँ सम से 12 आ जाएगा, उसके बाद में 0 चालू हो जाएगा। ओके So we are using 24-hour clock. नहीं 12 वाला है ये। अच्छा ओके।
12 वाला। तो आपने 520 क्यों लिखा होता? नहीं, अगर मान लो जब अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो क्या रीडिंग आएगा, लाइक दैट आई एग्जांपल। सर वो लास्ट वाला केस 11, 15 एंड 45 मिनट्स है लास्ट केस। लास्ट केस में मान लो ये जो है जस्ट मतलब ये 45 0 12 45 को मतलब 0:45 ले रहे हैं ऐसा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमेज जैसे ये इधर है ना 12 इसके इस साइड आएगा ना थोड़ा सा पहले। तो ये तो सर 12 बार फॉर्मेट हो गया सर। 24 का सर कैसे होगा सर? टोटल सर 24 करना पड़ेगा। टोटल में देखना होगा। हाँ, टोटल में फिर देख लेना आइडेंटिफाई करके कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेसमेंट आएगा करके। तो सर लास्ट फॉर एग्जांपल सर मतलब कि दोपहर के 2 बज रहे 14 o'clock सर, तो वो कैसे होगा सर? ओके, तुम बोल रहे हो कि 10 o'clock 24 में तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये वाला 6, ये 12, ये कितना आ जाएगा, फिर ये 12 लेना पड़ेगा, है ना 12। अच्छा ओके सर, ऐसा चेंज रहेंगे। लेकिन सर ठीक है लास्ट केस जो है वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से। वेट, डोंट रब। सर अगर 5:30 तो 6:30 रहेगा ना उसका इमेज? सर तो जो लास्ट केस आपने बनाया सर वो 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से 12 आ गया। 12 है ना। हाँ, इसके लिए आंसर क्या आएगा? सर हाफ लेकिन सर h/2 h/2 हो जाएगा सर। सर कैसे पता किया? एक वो तो दिखाया था ये पहले। KVPY में कराया था। एक मिनट, I will draw. Minimum height of plane mirror required by a person to view his own full image is h/2. ये करते हैं। तो इसके लिए first method. So you have this plane mirror, ऐसा है यहाँ पर, और इसका कुछ पार्ट रिक्वायर्ड है, दिस द ग्राउंड। पर्सन यहाँ पर है, पर्सन का हेड, आईज एंड फीट। काफी एग्जैगरेटेड हो गया। से हेड एंड आई के बीच का डिस्टेंस जो है, तो ये हेड एंड आई, ये जो है हेड और आई के बीच का डिस्टेंस इससे h1, आई और फीट के बीच का डिस्टेंस इससे h2 से। एंड सो क्या हो जाएगा, h1 plus h2 is equal to h। h1 plus h2 is h। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होगा, फर्स्ट अगर पर्सन इज एबल टू वॉच हिज हेड अगर विजिबल है तो क्या होगा, हेड से रेज कहाँ पे आएंगी, आईज पे। हेड से रेज जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके क्या होनी चाहिए, आईज पे आनी चाहिए, तभी हेड विजिबल होगा। से ये नॉर्मल हो गया, से ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला भी एंगल अल्फा। अब ये डिस्टेंस इज हाउ मच, h1। so these two are congruent angles, तो ये वाला h1/2 हो जाएगा, this will be h1/2। similarly feet, अगर feet visible है तो feet से रेस निकल के क्या होनी चाहिए, पर्सन के आईज में जानी चाहिए, पर्सन के आईज पे। और ये वाला एंगल से बीटा, तो ये वाला भी एंगल बीटा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दिस इज h2, दिस विल बी h2/2, ये वाला भी h2/2। सो दैट मींस अगर यहाँ का नीचे का मिरर भी नहीं है तो चलेगा, फीट दिख जाएगा यहाँ, और हेड के लिए ये आ जाएगा, ये भी। तो दैट मींस कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर, मिरर ये वाला पार्ट, दिस इज h1/2 and this is h2/2. So height of the mirror required is h1 plus h2/2, h/2 ना, correct? Yes sir. Yes sir. तो लेकिन अभी मिनिमम डिस्टेंस भी तो लगेगा ना दिखने के लिए? मिनिमम डिस्टेंस क्या लाइक अ मिनिमम डिस्टेंस वी मस्ट स्टैंड फ्रॉम। नहीं, हाँ, ये यहाँ पे अज्यूम करेंगे पर्सन का आईज जो है पूरा ऊपर नीचे सब जगह टर्न ले सकता है। ओके सर, ठीक है। हाँ बोले सर क्या? बट यहाँ पे तो मिरर बीच में है ना, मतलब ऐसे
तो इसके लिए पर्सन को बीचों बीच खड़ा रहना पड़ेगा ना? यहाँ पे ये ऐसा मिरर, ये पर्सन, और पर्सन का आईज जो है पूरा ऊपर हर जगह टर्न ले सकता है। ऐसा नहीं कि फेस उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या पर्सन में आईज जो है हर जगह से आ सकती है। ओके, समझ। सर वो एक ही बार में पूरा 180 डिग्री देख सकता है। सर वो जो रेज आ रही है सर वो जो रेज आ रही है सर एच से लेके फिर वो ई पे जा रही है सर, उसमें सर उसका क्या इमेज दिख रहा है मतलब? नहीं सर वो नहीं सर, एकदम टॉप पे। हाँ सर, हाँ ये वाला हेड से हुआ, रिफ्लेक्ट होके पर्सन की आईज में आ गई, तो हेड दिख रहा है। ओके सर वो जो H1 जो आपने दिखेगा, ठीक है सर, तो सिमिलरिटी से निकला। सर अगर उसको पीछे वाला वॉल पूरा मिरर में चाहिए रहेगा तो कैसे हो, क्या होगा? नहीं रुको अभी। हाँ अब जो है सो ये वाला H1/2, ये H2/2, तो सम H1 + H2/2 ना। ये किसी का डाउट था? क्या डाउट था इसमें? या हाँ प्लीज टेल अगेन, किसी का डाउट था इसमें? कौन सा डाउट था? सर मुझे एक डाउट है, पूछूं? हाँ। सर ये जो हाइट है वो तो ग्राउंड के ऊपर है ना, तो सर वो जो नीचे है उसके वो हाइट भी लेना पड़ेगा ना? हाँ नहीं तो आप हाउ विल यू राइट आंसर? यू विल से कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज H/2, है ना? और वो ग्राउंड्स एंड its lower edge, and its lower edge must be placed at height H2/2 above ground. ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। हाँ सर। सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर। हाँ नहीं, ही इज सेइंग कि आपने तो ये ले लिया, अगर ही इज सेइंग कि आपने मान लो इतना हाइट लिया, इसको मिरर को ऊपर खिसका दिया ऊपर, तो ऊपर जब अगर मान लो इस मिरर को आप ऊपर डिस्प्लेस कर दोगे तो हेड तो दिखेगा लेकिन फीट नहीं दिखेगा, है ना? यस सर। और वही मिरर को नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा? फीट दिखेगा, हेड नहीं दिखेगा। तो ही वाज सेइंग कि ये वाला कंडीशन भी मेंशन होना चाहिए। सर इन दिस सिचुएशन इस बार पॉइंट नहीं है, पूरी बॉडी है, इसलिए कोई भी रे मीट नहीं हो रहा है। हाँ मतलब हम क्या कर रहे हैं, टू फॉर्म द इमेज, पूरा इमेज देखना है ना, तो पूरा इमेज देखने के लिए पूरे बॉडी को हमने कई सारे पॉइंट्स मार्क कर लिया। बॉडी का टॉप मोस्ट पॉइंट हेड हो गया, और जो बॉटम मोस्ट है फीट। तो अगर टॉप मोस्ट और बॉटम पॉइंट को दिखा लिया तो बीच के पॉइंट्स भी दिख जाएंगे। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट, हाँ ये प्लीज नोट दिस वन, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से करते हैं, रुक जाओ। So there is no no restriction on how far away the man is from the mirror. Yeah, I was just about to ask that. हाँ चलेगा। इसको हाफ रहना पड़ेगा ना दोनों के बीचों बीच, मिरर और वॉल के। लेकिन अगर वाला पॉइंट सेकंड मेथड से क्लैरिटी आएगा। एक सर इसको सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं ना? हाँ दैट इज व्हाट सेकंड मेथड इज। लेट मी ये वाला मैं आई विल कम टू दैट। एक मिनट रुक जाओ, ये कॉपी कर लो। वेट डोंट रब। बट 2 minutes सर। हाँ दिस क्वेश्चन आई कैन इरेज ना, everybody has copied. सर 1 minute सर। और सर आप वो न्यू ग्रुप का लिंक भेज दोगे ना? हाँ आई विल सेंड। भेज दिया है सर, VJCS ग्रुप में आया है। क्या है? वो को-होस्ट ने बोला VJCS ग्रुप में भेजा है। केमिस्ट्री? हाँ केमिस्ट्री ग्रुप में। So H1 + H2 is given in the question, or you assume? Yeah. Total height of the person is h. So H1 + H2 is h. मतलब heads और head और eye के बीच का distance is h1 और eye is h2. So to assume H1 and H2, right? या तो दोनों का सम, हाँ h1 + h2. Yeah, h. Yeah.
सर लेकिन अगर एक पर्सन बहुत ही दूर है तो सर उसको तो उसकी हाइट से हाफ से भी कम मिरर लगेगा ना। नहीं लगेगा। एक मिनट आई विल कम दैट पार्ट। ओके सर। ओके सर। सेकंड मेथड है उसमें जो है लेट अस डू, देखो यू हैव दिस मिरर, तो अब ये मिरर ऐसा है और से दिस द ग्राउंड, पर्सन यहाँ पर है, पर्सन का जो है हेड, आईज और ये feet, ठीक है। अब इसका इमेज जितना ये डी डिस्टेंस आगे है, डी डिस्टेंस पीछे बनेगा इमेज डैश यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा ई डैश एच डैश, और यहाँ पर जो है ई डैश, ये इमेज आ जाएगा। ये एच हाइट का पर्सन है तो इमेज भी ऑफ द सेम हाइट, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये पर्सन दिस इमेज मस्ट बी विजिबल टू पर्सन, मतलब ये रेस जो है क्या होनी चाहिए, पर्सन के आईज में जानी चाहिए ऐसा, ठीक है। तो दैट मीन्स इतना ही पार्ट मिरर का रिक्वायर्ड है। एंड रे डायग्राम से भी आ रहा है गाइस, देखो रे डायग्राम से क्या हो रहा है, ये रे ऐसे आया, ये ऐसा, और ये इधर आ रहा है, देखो दिस विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका भी देखो यहाँ से ये ऐसा आ गया, वो इधर आ रहा है। अंडरस्टूड? अब लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है, इसको y बोल देते हैं। नाउ लेट अस यूज दिस सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स लिया, ये ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दे आर सिमिलर, हाँ, दिस इज h, दिस इज y, ये डायमेंशन इज d और ये वाला भी d, है ना। तो हाउ विल यू कैलकुलेट, देखो यहाँ पर, तो इसके लिए ये वाला डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय ये डायमेंशन इज इक्वल टू, सिमिलर ट्रायंगल है, इज इक्वल टू दिस अपॉन ये पूरा। तो इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2। सर आप वो हेड और फीट से वापस से वो रे बना सकते हो, अभी आपने बनाया था, आपने इरेज कर दिया ना ये था ऊपर वाले डायग्राम। हेड से रे आया, इधर आएगा, मतलब यहीं से आता हुआ लगेगा, appear to be coming from this point। यस सर, करेक्ट। ठीक है। यस सर। सर हम इसको वर्चुअल या रियल में ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं? कौन सा, ये वाला? हाँ नहीं, ये देखो पॉइंट, ये जो है ये ऐसा है ना, हाँ तो ये जो है ये रेस ऐसे आ रही है यहाँ पे ना। यस सर। सो यू वांट टू ट्रेस द इमेज ऑफ हेड, है ना, तो हाँ ठीक है, सर। अलग से करके देख लो। ये जैसा हाँ है, सर। ये ऐसा मिरर हो गया और ये हेड है, तो रेस ऐसे आ रही है यहाँ से, यार it appears to be coming from this point। यस सर। तो ये ऐसा आ रही है, यहाँ से आती हुई लग रही है। हाँ सर। तो और एक रे लोगे तो यहाँ से आते जाएंगे यहाँ। तो सर मतलब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, तो वर्चुअल हो गया। हाँ ओके सर। सर हाँ सर, तो हम लोग कभी भी मिरर में देखते तो वो वर्चुअल इमेज ही रहता है। करेक्ट, हम जो अभी देख रहे हैं जो है उस इवेंट के लिए वर्चुअल इमेज, इस इवेंट में वर्चुअल इमेज ही रहता है। यस। तो हमारा जैसे इसलिए हमने जो गाइस जो है डिफाइन वैसे किया कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस और इमेज क्या है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस, हाँ वैसे करके। हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, ये समझ में आया सबका? कैन आई रेज दिस वन? Yes, sir. No sir, wait. No sir, no sir. Next is total number of images in two main mirrors kept parallel to each other. Total number of images बताने हैं इसमें। इन्फिनिटी images ट्रायंगल सर 0 है तो सर 360 by 0 तो सर इनफाइनाइट। हाँ, into plane mirrors।
हाँ क्या आ जाएगा इसमें इनफाइनाइट, ठीक है Yes, sir. ठीक है कुछ विल आल्सो ट्रेस आल्सो, ठीक है वाला कॉपी करो, विल ट्रेस कोई एग्जांपल लेके लेट अस ट्रेस आल्सो, let us locate the number of images, हाँ मतलब not all, at least few images we'll try to locate. Yes, ये वाला can I erase? So I didn't Yes, understand sir. how I by d is equal to h by 2d. सर एनर्जी डिमिनिश होगा या नहीं होगा? ओके ये कैसे हुआ, देखो इसमें क्या दिया हमने, एक ट्रायंगल लिया, ये वाला बड़ा ट्रायंगल द बिगर वन और ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है सो Yes, sir. ये दोनों ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर, है ना? Geometry. करेक्ट, हाँ ये सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम होगा भाई, है ना? तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल पकड़ा, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इसको लिखा इधर एंड ये वाला, वैसे ही बड़े ट्रायंगल में दिस अपॉन ये पूरा। Okay, sir. Thank you. सर y एक्चुअली है क्या, मतलब हम उसको कैसे बोलेंगे y को? नहीं, y is the size of the mirror which is required ना, minimum height of the mirror which is required by person to see this image. Full view, okay sir. ठीक है, can I erase this one? Everybody understood ना ये वाला part? हाँ तो please note this question also. So हमें दो बनाने हैं, I need this space also. Please note this question. Find the total number of images in two plane mirrors which are kept parallel to each other. So infinite. Infinite, correct. Sir, infinite. एक मिनट, हाँ ठीक है, can I erase this one? सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मतलब आपने जो पढ़ाया था उसमें अभी इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ मिरर में, अगर समझो कि मिरर सामने है और हम बीचों बीच खड़े हैं और पीछे वॉल है, अगर हम लोग को पूरा इमेज वॉल में चाहिए, मतलब मिरर वॉल का इमेज मिरर में चाहिए, तो वो कैसे, वो भी इसी मेथड से कर सकते हैं ना हम लोग? सेकंड मेथड से एक क्वेश्चन हो जाएगा दैट, हाँ you can send me that question, we can practice. हाँ वो अलग से ओके सर, ओके सर, ठीक है ये वाला करते हैं पहले। तो अब जो है यू आर सेइंग, ठीक है दो मिरर्स हैं गाइस, तो हम ले लेते हैं दो मिरर्स, ठीक है दो मिरर्स हैं हमारे पास, दिस मिरर 1 मिरर 2, ठीक है ऑब्जेक्ट बीच में रख लेते हैं, से यह डिस्टेंस को जो है इसको रख लेते हैं से 2 सेंटीमीटर और ये वाला 4, नहीं सेम ही हो गया यार, इधर कर लेते हैं ना इसको, ये वाला 1 सेंटीमीटर एंड ये वाला 3 सेंटीमीटर। हाँ तो अब जो है वी हैव टू, देखो इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रेस विल गो इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है नाउ वी हैव टू ट्रेस, वी हैव टू फाइंड द लोकेशन। हाँ तो ट्रेसिंग के लिए वी कैन स्टार्ट विद एनी मिरर, हाँ ठीक है ना, वी आर स्टार्टिंग, तो यहाँ पर स्टार्टिंग विद, इसको M1 बोल देते हैं, इसको सर वो पार्ट बहुत So कम that दिख part रहा is है। not visible. Okay, Yes sir, now visible. Yes sir. Suppose starting with M1, we are starting with mirror 1, ठीक है तो गाइस पहले बताओ कि मिरर 1 में इसका क्वेश्चन का करवा रहे हो कि एक दूसरा टॉपिक है ये? नहीं उसी का ही, जैसे नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे ना इनफाइनाइट होंगे, तो वी आर ट्राइंग टू लोकेट फ्यू इमेजेस फॉर दिस एन एग्जांपल। ओके सर, चलो ठीक है, तो पहले बताओ गाइस इसका इमेज इसमें, हाँ वी आर स्टार्टिंग विद M1, पहला इमेज कहाँ पे आएगा? So 1 centimeter behind the mirror. 1 सेंटीमीटर, दिस इज द गाइस, हाँ अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, आई एम राइटिंग दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड आई हैव स्टार्टेड विद 1, I have started with mirror 1. This is the first image and I have started with 1. Now this image will act as an object for this mirror. इसके लिए distance कितना हो जाएगा? 5. तो image क्या होगा, इससे 5 पीछे बनेगा,
इससे 5 पीछे, 5 सेंटीमीटर पीछे. This is the second image, and I have started tracing with mirror 1 as first. Okay. Sir, so I2 is the image of I1. I2 is the image of I1 in this mirror 2. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Sir, what is the distance between the two mirrors? 3 centimeters. नहीं, ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ये वाला 3. Total distance is 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. Okay, sir. तो 3 सेंटीमीटर वाला इमेज नहीं आएगा क्या? मतलब रेज इन ऑल डायरेक्शन, राइट? हाँ, नहीं, I will trace that. I have started with M1 अभी. ठीक है, I will do that also. Okay, sir. अब ये बताओ नेक्स्ट, इससे कितना होगा ये वाला डिस्टेंस? 9 सेंटीमीटर. 9. तो नेक्स्ट इमेज कहाँ होगा? इधर पीछे साइड 9 में बनेगा. Yes, sir. Yes, sir. This is the third image, 1 वाला सीरीज एंड 9 सेंटीमीटर. ऐसे होते रहेंगे. Sir, please can you show the third image again? थर्ड वाला देखो. हाँ, सेकंड ये वाला है. What is हाँ, the sir, distance? This distance is 9. 9, yes, sir. यहाँ से 9 है तो इधर भी 9 आएगा पीछे. हाँ, अच्छा, हाँ, correct, yes. ठीक है, तो ऐसे बनते चले जाएंगे. अब now we'll starting with M2. Starting with M2 guys. So this is mirror 1, mirror 2. So when you start with M2, first image कहाँ पे आएगा? So 3 centimeter behind M2. 3 centimeter behind. So ये हो गया with 3 cent. This is the first image, and I have started with 2 वाला series. 3 cent. Now second. 7 centimeter. 7. The next image 7 centimeter behind M1. This is the second image of this series when I have started with M2. Third वाला. 14 centimeter, right? Okay. कितना हो जाएगा ये वाला? 11 centimeter behind. 11 sir, 11. This is the third image. I have started with 2 other series. So you have to do it like that. Final answer. फाइनल आंसर में ऐसे होंगे. कहाँ गया? सबसे क्लोजेस्ट ये वाला है I12 3 सेंटीमीटर पे. I12 फिर I21 फिर कौन सा हो गया? I32 इधर. So I11 is the closest, no? नहीं, इस साइड वाला नहीं बोल रहा. I am saying right side. लेफ्ट साइड में बताओ. ओके, लेफ्ट साइड. सर उधर I32 आएगा. ओके, इस साइड कितना हो जाएगा ये वाला? I11 फिर I22 और ये वाला कौन सा रहेगा? तो फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है गाइस, दिस इज हाउ यू विल गेट जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस. ऐसे फाइनल आंसर हो जाएगा मतलब. ये फाइनल आंसर हो जाएगा. करेक्ट गाइस, आप लोगों को बुकलेट मिला है ना? हाँ सर. Yes sir. So let us solve some questions. रुक जा सर, रबर पे. Page 346 में you have exercise 1 में please solve question number 3. चलो सॉल्व करके बताओ. 2 minutes we'll get the book. Okay. Prem, are you there? Okay. You didn't get the booklet, Kim? From which batch you are?
Which batch you have from? Everybody has got the booklet, na, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One student said he didn't get the booklet. So soft copy. Okay. Okay, the soft Sir, is copy. the answer B? Soft copy. Huh, please open the soft copy and try. Please don't say the answer. Third question, exercise 1 का third. If everybody has copied, can I erase this one? इसमें किसी को doubt तो नहीं है? नहीं सर, नहीं कॉपी किया है, एक सेकंड. And Pooja, please take the screenshot also, huh? Yes, sir, taken. Okay. After the class, please post in the group also, huh? The screenshots. Yes, sir. Okay. So, students who have done the third one, they can attempt second. After third, please attempt second question. इसी order में please attempt, huh? Fifth, sixth. इसी order में please attempt, huh? 6, 7, 8, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Huh? Please attempt in this order. Sir. First, huh? Sir, I have one doubt, sir. In this sums, like when we got 7 centimeter, sir, then we have to again measure with respect to M2. So like 7 plus 1 plus 3, and then we have to go at that side, like that we have to do. नहीं ये distances तो आ गए. Now you want to report the answer क्या? No, sir, I'm not. I32 का distance. Yes, Okay. sir. Basically, yes. नहीं, जैसे आपको distances चाहिए, ये distances तो known है. अब जहाँ से distance report करना है, you can tell. नहीं sir, I am asking कि sir like I12 का distance 3 centimeter आ गया sir in the second diagram. I12 का distance is 3 centimeters from M2. Yes, हाँ. Now sir, we want to find the next image. So we will take 3 plus 1, and then it will be behind M1 like that. No. इस side के images, say right side के images होंगे. I12 का distance is 3 centimeters from M2. I21 का distance is right side का images, हाँ, right side के images. Sir, he's only asking about starting with M2 वाला. Yes sir, I am asking the algorithm like. नहीं. Distance मतलब actual distance. किसी का relative. सिर्फ mirror से mention कर देना जैसे as we have shown. हाँ तो सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि I2 से 3 सेंटीमीटर है, तो अभी नेक्स्ट बनेगा वो 7 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, वैसे हमें लाइक करना है क्या? जैसे you are saying, जैसे mirror 1 से ये Yes, distance is this is 7 centimeter. Yes. फिर ये कितना आ गया 11, तो यहाँ से 11 सेंटीमीटर हो गया. अच्छा मतलब we have to go alternate सर, मैं वही पूछ रहा था ऐसे. हाँ सर वही. Thank you sir. थर्ड वाले का आंसर आया गाइस किसी का? थर्ड. Yes sir. Sir, wait. Yes sir. Can you explain third? किसका आया? Yes sir. Okay, please tell. Sir, is the answer D first of all? Please Yes, check sir. Answer C. Answer C. Sir, I got Yes, C. C. C है. C आंसर आ रहा है. Okay. C. Yes sir. Booklet में भी आंसर की में भी C दिया हुआ है. Okay, let me check. ठीक है. तो आंसर थर्ड का you have ये ऐसा cases. ठीक है. This is mirror 2. ये mirror 2, mirror 1. So this is the right side. है ना? Right side ये वाला देखना है side. Okay. Right side and the person का distance is 1 and 2.
So ये वाला 1 meter and 2 meter. Okay. Now we have to sketch. So first we are starting with L1. दोनों करना पड़ेगा. ये simultaneously दोनों जो है starting with L1. किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं सर? हाँ, किसी से भी कर सकते हैं. फिर finally we'll report the both the answers together. तो आपने यहाँ से start किया. ये कितना आ जाएगा? 2 इधर है तो 2 इस साइड मिल जाएगा. This is the first image. You are starting with 2 meters. Sorry, 2 meters. Now इससे बनाना है. तो 5 meters. 5 इधर आ जाएगा. Let us draw the complete thing. Then we talk. I am the host, co-host. मेरे को यहाँ पे कोई आवाज नहीं चाहिए. Okay. तो आप So दूसरे में जाओगे. पापा का इम्पोर्टेंट क्लाइंट कौन है? 5 और ये वाला जो है सेकंड वाला. ठीक है. अब गाइस इसके लिए थर्ड वाला क्या बनेगा? मेरा तुम तो भी नेट नहीं चल रहा है. पूजा या माइक इज ऑन. Someone's mic is on. पूजा प्लीज ऑफ कर. ये वाला क्या आ जाएगा? 8 meters. 8. तो 8 इधर आ जाएगा. थर्ड वाला एंड दिस इज 8. ठीक है गाइस, ये हो गया. अब स्टार्टिंग विद L2 भी कर लेते हैं. फिर फाइनली क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है विल सी. स्टार्टिंग विद L2. तो अब विल स्टार्ट विद L2 फर्स्ट. ये 1 मीटर आ जाएगा. दिस इज द फर्स्ट इमेज. स्टार्टिंग 4 meters now. फिर यहाँ से जो है ये वाला 1 मीटर हो गया. फिर इस साइड 4 है तो इधर 4 आ जाएगा. दिस इज द सेकंड स्टार्टिंग विद 2. ठीक है. 7. Sorry, this is how much? This is 4. उसके बाद 7. 4 centimeter. 4 meter. Okay, final answer. तो फाइनल आंसर में राइट साइड में ही हमारा इंटरेस्ट है. तो ठीक है, राइट साइड का ही करते हैं पूरा. तो ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर 2 मीटर. तो ये पहला राइट साइड का फर्स्ट ये वाला आ रहा है यार. ओके, I12. फिर कौन सा आया? I21. फिर ये कितना आ रहा था? ये वाला जो है दिस वाज 4 एंड 7 इधर आ रहा था. ठीक है, 7. I32 पर 7 आ रहा था. I32. तो राइट साइड में सेकंड नियरेस्ट कौन सा हो गया? दिस वन इज द राइट. ठीक है ना? तो राइट साइड का सेकंड नियरेस्ट इज दिस एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन देखो, दिस डिस्टेंस. So what will be this distance? Guys, क्या होगा इसका 5 meter from the mirror, 6 meter from the person. 5 meter from the mirror and 6 meter from the person. सर I12 क्यों नहीं लिया सर हमने? I12 क्यों लिया? नहीं लिया मतलब nearest. Oh नहीं, they are saying कि second nearest they are asking. अच्छा, sorry sir, yes. अच्छा sir, so like we have to compare. You made both the diagrams because we have to compare कि right में और left में, like in which we are getting nearest second image. Correct. Okay sir, thank you. सर तो क्या डिफरेंट आएगा? सर राइट साइड का सेकंड नियरेस्ट इज दिस वन. हां सर वो कौन सी? प्लीज टेल. सर I21 कौन सी इमेज है? ये वाली. सर ने लिखा है क्वेश्चन में कि he looks into L2, तो इससे ये मतलब नहीं हुआ कि पहला हम लोग को रिफ्लेक्शन L2 से ही लेना? एग्जैक्टली सर, मेरे को भी वही लगा. नहीं, देखो साइमल्टेनियसली इमेजेस तो बन जाएंगे, इधर भी बनेंगे इधर भी बनेंगे. हाँ राइट सर, तो किधर से भी चालू करो फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, इट डजंट मैटर. फाइनल इमेजेस जो फाइनल आप बना लोगे, फाइनल डेटा फाइनल आंसर होगा. उस फाइनल आंसर में सेकंड नियरेस्ट इमेज ऑन द राइट साइड. मतलब वो सारे इमेज तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं. करेक्ट, ये पूरे एग्जिस्ट कर रहे हैं. राइट साइड के में दोनों साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो राइट साइड में सेकंड नियरेस्ट वाला ये वाला होगा ना. सर तो I22 भी 6 मीटर ही आ रहा है मतलब. नो राइट साइड नहीं, they have mentioned ना
राइट साइड देखना है, सो व्हाई यू आर टेकिंग लेफ्ट साइड, ओके सर, ओके। है ना, राइट साइड पे। चलो सेकंड वाला फिर ये हो गया। सेकंड वाला बनाओ जल्दी, कैसे करेंगे सर हो गया। सेकंड, हाउ डिड यू डू? सर आई यूज दैट दिस राइट एंगल मींस वो 45 से अगर 60 हो गया तो वो अंदर के राइट एंगल के एंगल्स को एडजस्ट करके 30 हो जाता है फिर बाहर का इमर्जिंग एंगल। ओके ठीक है, तो ऐसा आता है, तो उससे आंसर क्या आ रहा है फिर? सर वो सब में मैंने मिरर जैसा है वैसे ही रखा, पर इंसिडेंट रे को 60 डिग्री पे इंसिडेंट किया। नो 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 नो, यू हैव टू इंसिडेंट रे वैसे ही रखना है, मिरर को टिल्ट करना। हाँ पर वो Sir, we have asked with respect to incident ray. एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्टीमेटली 60 हो रहा है ना, तो मुझे डी ऑप्शन आया, पैरेलल इमर्ज हो रहा है। एक मिनट लेट मी चेक। So with respect to incident ray करेंगे तो it doesn't make difference. एक मिनट ठीक है, चलो हाँ गाइस ये बताओ, अभी जो है इसको जो है ये ऐसा हो गया, ये मिरर हो गया, अब ये रे, ये मिरर हो गया भाई, ये 90 डिग्रीज से दिस एंगल इज थीटा, ये नॉर्मल है। एंड यू नो डिविएशन फ्रॉम द मिरर कितना होता है? डिविएशन फ्रॉम द मिरर 180 minus 2i। 180 minus 2i, ठीक है भाई। ये वाला जो आया ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा यार। एंड दिस विल बी हाउ मच, 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा i इक्वल टू आर, 90 माइनस थीटा, ये 90, ये कितना हो जाएगा, थीटा होगा। फिर नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 थीटा होगा। minus theta। चलो ठीक है, पहला डिविएशन यहाँ बताओ कितना आएगा, 180 माइनस 2i, व्हाट इज i हियर, थीटा, ये डेल्टा 1 आ गया। यहाँ पर 180 माइनस 2 into i, what is i here? 90 minus theta। 90 माइनस थीटा, सो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, ये कितना हो गया, 2 थीटा। Yes sir। So what is the total deviation guys? 180 degrees। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 is 180। यहाँ तक सर किसी को हमने डाउट? 180 माइनस 2 थीटा जो लिखा सर वो पहले हमने डिराइव किया था फर्स्ट क्लास में, उधर से ये करके ले लिया सर। 180 माइनस 2i हमने पहले क्लास में देखा। हाँ वही ले लिया ना। मतलब सेकंड में इधर ही रोटेट कर रहे हैं वो लोग। एक मिनट रुको, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक तो सबको समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब जो है चलो गाइस अब देखते हैं बोला, अब जो है ये वाला ऐसा था, अब ये रे ऐसे आ रही थी भाई, तो रे ऐसे आ रहा था यहाँ पर, और ये एंगल आपको 45 दिया था, अब ये वाला भी 45, आई इक्वल टू आर, ये भी 45 हो जाएगा और इधर भी 45 आ जाएगा, और 45 45 180 का मतलब क्या है कि रे जैसे आया है वैसे जाएगा वापस, एंटी पैरेलल ना। यस सर। ठीक है, अब जो है लेट्स से यू हैव रोटेटेड द मिरर, मिरर को आपने रोटेट कर दिया सो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कर दिया, ये 60 कर दिया, तो आपका जो है वो भी क्या आ जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये वाला एंगल 30, ये वाला कितना हो जाएगा, 60, ये वापस छोटा एंगल हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा। So that means this was the initial emergent ray, जो इंसिडेंट रे के 180 में गया, और फाइनल इमर्जेंट रे ये वाला है। सर पैरेलल कैसे डिसाइड कर दिया आपने? ओके देख लेते हैं, फाइनल इमर्जेंट रे। अब ये बताओ कि जो है टोटल डिविएशन 180 होना है, इज इट एग्रीड? यस सर। यस। अब इफ दिस इज द इंसिडेंट रे,
दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये और ये एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एग्जैक्टली Yes, sir. मतलब हाँ 180 होगा। यहाँ पे भी डिविएशन नेट 180 का ही आएगा। सो अगर ये वाला ऐसा है तो ये वाला फाइनली ऐसे ही जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द इंसिडेंट रे, यू आर जस्ट टिल्टिंग द मिरर। इंसिडेंट रे यहाँ पे दोनों वैसे ही हैं, फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज भी दोनों वैसे ही होंगे। नहीं सर, नहीं समझा। ओके ठीक है, सो से इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, एग्री? यस सर। यस यस। अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है तो जो इनिशियल इंसिडेंट रे और इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, they will be parallel? Yes sir. Yes sir. Why they will be parallel? 180 डिग्री का 180 डिग्री का टोटल डेविएशन है। Yes है ना? Total deviation is 180. अब what you are doing is you are tilting the mirror arrangement change कर रहे हो, लेकिन initial reflected ray को जो initial incident ray है उसको वैसे ही रखा आपने? Yes sir. तो इसमें भी deviation 180 का ही आएगा। So we have to solve that. We have to add those two deviations and check, sir. हाँ, इसमें भी you see ना, इसमें भी करोगे तो you will get the same thing. See, हाँ sir, हाँ 180 minus 2 theta plus 2 theta. 180 minus 2 theta plus 2 theta. या 180 minus 2 into 60 will be how much यहाँ पर? सर बट हमने एंगल को टिल्ट कर दिया तो कैसे फिर हमको सेम आएगा सर? डेल्टा 2 यहाँ पर 180 minus 2 आई, 180 minus 2 into 30 कितना होगा? 120. दोनों का सम क्या आएगा? 180. That means यहाँ पे रे ऐसी जा रही है वापस? Yes sir. So that means ये वाला emergent ray और ये वाला emergent ray parallel है, because ये incident ray और ये वाला incident ray same है। सर लेकिन हमने वो एंगल चेंज कर दिया मिरर का जो टिल्ट का ये, तो सर तो हमको कैसे सेम आ रहा है सर? वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ना यहाँ पर डिविएशन की वैल्यू जो है, हमने जनरल एनी थीटा के लिए वैल्यू शो कर दी कि 180 आता है। हाँ सर हमने, हाँ यस सर। तो इस केस के लिए फिट बैठ गया 180 अगर आ रहा है तो ये दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, है ना, फॉर एनी थीटा। तो इफ दिस इज द अच्छा इंसिडेंट एनी रे, थीटा, ओके सर। और सर और एक सर आपने जो थर्ड सम करवाया था ना सर, सर उसमें क्वेश्चन में तो बोला था राइट सर, लेकिन कभी सिर्फ ऐसे बोला कि सेकंड नियरेस्ट इमेज है, तो हमें फिर दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट दोनों का। वो तो एम्बिग्यूटी हो जाएगा, दे हैव टू मेंशन, दे विल मेंशन। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। हाँ So whenever two plane mirrors are at 90 degrees, we can say that the emergent ray will always be 180 degrees, like anti-parallel to the incident ray, yes, right? Yes, because yes, we are able to show that for any theta, the final emergent ray has a deviation of total deviation of 180 degrees. Yes. Thank you, sir. Guys, जल्दी करो ना, ये इसके बाद वाला 5th and 6th. The 5th हो गया। 5th हो गया। टाइम हो गया। टाइम हो गया। हो गया 12 बजे 11:37 हो गया। Sorry, I didn't see it. ठीक है। Guys, ये वाला फिर होमवर्क कर लें, ये वाला। Yes sir, हाँ तो चलेगा। ठीक है। Guys, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ, और कुछ आज की क्लास में कोई डाउट प्लीज आस्क। नो डाउट। No doubt, sir. नो डाउट सर। सर रिकॉर्डिंग सर वो ग्रुप का अभी भी चल रहा है, तो कौन से ग्रुप पे भेजा है कोर्स? नहीं, in both the groups I will send. तो कौन से नहीं सर, लेकिन आप अभी जो हम करंट ग्रुप में वो वाले ग्रुप में से किसी एक में भेजो ना, हम तो वो आपके दोनों ग्रुप में नहीं हूँ मैं, इसलिए प्रॉब्लम है। को भेज दो ना। नहीं whatever I will send, नहीं whatever I will send ना, I will send in both the groups. और सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं वो दोनों ग्रुप में ही नहीं हूँ सर। The link is on 2B. और सर वो सर link is on 2B camdout. नहीं, मैं 2A वाले में हूँ। Guys, can somebody send him the link please? Who's this? Vedant 8407 Vedant. हाँ, wait.